तो ये कॉन्वर्सेशन जो आपने हमारी बात सुनी, उसके पहले की कॉन्वर्सेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि हाँ, निरंतर ने ये एक स्टडी की और बहुत गहराई से ये स्टडी की, लेकिन निरंतर तक ये बात आई कहाँ से? और हम अगर नारीवादी आंदोलन को भी देखें तो हमें पता है कि हमारे पहले भी बहुत थे और हमारे बाद में भी बहुत आएंगे। तो आई थिंक इन द स्पिरिट ऑफ दैट हम जानते हैं कि निरंतर ने एनालिसिस की, लेकिन निरंतर को एनेबल किसने किया वो एनालिसिस करने के लिए? किसने हमको एनकरेज किया कि ये करना चाहिए और क्यों ये हुआ? तो इसलिए मैं जावेद को इनवाइट करना चाहती हूँ। जावेद AJWS न्यूयॉर्क के से है यहाँ पर, और इस स्टडी के मास्टरमाइंड भी रहे हैं। When this conversation started, एक तो था कि AJWS had already had a number of years of work with adolescent girls focused issues, and in that approach we really focused on a feminist organizing principle. So even before this grant came in, we were working on adolescent girls issues with partners like Shaheen and a number of others to really see how young girls' issues show up in the context of feminist organizing. And so when the early and child marriage conversation started happening, and when AJWS was in a position to take on this grant, the ether was one of a very development-focused conversation, to be honest. In that conversation, girls were really being seen as very instrumental, and it was a very global north-focused conversation that, the things that people have already mentioned before, the idea that there is, bad culture, bad traditions that we need to fix. These fixes need to happen mostly from a global north-led agenda. The big shifts that were seen as solutions were focused on legal change, so really changing laws and policies so that age of marriage becomes criminal, and the root cause analysis that that was primarily circulating at that point was really focused on these kinds of three intersecting issues. One was economics, one was bad traditions, and the third was gender inequity. So to address the economics, the solution was to provide conditional cash transfers. So conditional cash transfers to keep the girls at home, unmarried, and that was success. To address the bad traditions, the solution was to criminalize. So then you stop that tradition from happening, and it was not really focused on what happens when the girl gets married at the age of 18+1. Do we care about the quality of marriages? And the issue of gender inequality was really not addressed through a lens of gender inequality at all. It was addressed primarily through the issue of education and health. So it was a very development-focused issue. And then in that, when AJWS got this opportunity and we looked at the discourse, we said, well, it really seems like all the solutions and all of the ideas are coming from a perspective that don't center the lives of people who are really being affected by the issue. And that is a real value that as feminist funders we had, to really center the perspectives of people who are already fighting this fight and already jujifying on this issue, and seeing what are the solutions that people have who are already in the center of this conversation. So in trying to get a feminist analysis on this issue, that was a very important piece, was to really center a feminist-led perspective, practice, and also really valuing that the methodology will bring with it a creation of a community of peers, so that whatever solutions come will not be imposed from external pieces, but actually be from an analysis that comes from within. So from that kind of values alignment and that kind of thinking, we really wanted to look at the RFP that we set out.
And of course, Nirantar gave us the most exciting opportunity to partner in that way. तो जावेद ने कहा कि जो जब उनको ये अवसर मिला कि इस पूरे काम को वो स्टीयर कर सके, जब कैंडिडा फंड ने उनको इनवाइट किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो बाहर का डिस्कोर्स था, जो उस वक्त बाल विवाह पर बातचीत हो रही थी, वो ज़्यादातर विकास के संदर्भ में हो रही थी और उसमें लड़कियों को बस एक ज़रिए की तरह देखा जा रहा था कि किसी एक गोल को अचीव करने का ज़रिया है, ना कि लड़कियों को खुद अपने बलबूते पे देखा जा रहा था। और ख़ासकर वो एक नॉर्थ सेंट्रिक, वो जो विकसित देश है उनके तरफ से आने वाला एक एजेंडा था, ना कि ज़मीनी स्तर से उभरने वाला। और जो विकसित देशों का नज़रिया था विकासशील देशों की तरफ की, वो एक पिछड़े या जो जया ने भी कहा कि एक बुरी प्रथा है जिसको बदलना है। तो उनका फोकस भी लॉ की तरफ था, लीगल चेंजेस की तरफ था, जहाँ पर वो अर्थशास्त्र को देख रहे थे सिर्फ गरीबी के नज़र से देख रहे थे उसको। और उनको लग रहा था कि अगर हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, मतलब अगर किसी तरीके से एक पैसा देकर लोगों को शादी की एज बढ़ाएंगे तो वो काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि अच्छा 19 में शादी हो गई, लेकिन उस 19 में शादी का क्या असर होगा लड़कियों पे। तो उस वक्त AJWS चाह रहा था कि ऐसी एक मूवमेंट को सपोर्ट करे जो खुद फेमिनिस्ट नज़रिए से इस मुद्दे के साथ जूझ रहे हैं और वो किन सवालों को पूछ रहे हैं और उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनको कैसे, उनके जो संघर्ष है उनको और कैसे सपोर्ट किया जा सके, उस नज़रिए से उन्होंने इस काम को करना चाहा। और उसमें उनको लगा कि निरंतर एक सही संस्था होगी जो ये रास्ता और बड़ा कर सकती है। तो इसलिए हम आपने निरंतर को ये opportunity भी दी। Did I miss anything or this is good enough? हाँ, कि ये ज़रूरी था कि समुदाय के नज़रिए से इस पूरी मुद्दे को देखा जाए और उनके जो चैलेंजेस है उसको केंद्रित करते हुए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, थैंक यू देवयानी। ओके, सो I'll give a little bit more context कि मैं ये वाला सेशन क्यों कर रही हूँ और क्यों ये पूरी लंबी कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ये इसलिए भी है कि जब जो निहारिका ने भी कहा कि हम देखना चाहते थे कि ये आइडियाज़ कहाँ ट्रैवल हुए, जो हमने शुरुआत की थी और फिर वो कहाँ गए, और उसकी हम एक छोटी सी मैपिंग कर रहे हैं। और उस मैपिंग के दौरान वी रीच्ड आउट टू जैकलिन एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर about where these ideas have spread and why according to her, because Jacqueline at that time was leading the researches in AJWS New York, and why we wanted to understand from her why she felt it was so important to take this research to various places, because also सिर्फ रिपोर्ट लिख लेना was not enough. We had done a lot of work in taking the research to various places, and of course Jacqueline had been instrumental in guiding us to what all spaces the research should go to. And when we were having this conversation with Jacqueline, something very interesting that she said, which I hope Jacqueline you will also be able to share about as you speak, is कि ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी. It's not just an India problem. कि हम जब when we look at a problem from a patriarchal lens, often we confuse what is the cause and what is the consequence, or we confuse the symptom for the problem. And this was something she had seen in her own experience working in the US, and so when she came into the child marriage work, how it was important to bring that same perspective and a feminist analysis to the issue, and where all then she has been able to take the work and what in her mind are changes that have happened because of it. Hi everyone, thank you so much, and thank you for inviting me to be part of this reflection of this work that's so close to my heart and
So it's a privilege to be in the room with you all. And I hope, and you can steer me in different direction, Apeksha, if I'm not getting to what you wanted me to, but I'll pick up on this point that you made. The beginning of this project, which led to, really focusing in on a feminist analysis as being the most critical aspect of this first fundamental piece of work for this work, which led us to working with Nirantar, of course, which is that the feminist analysis was above and beyond the most critical piece, beyond any issue-specific sort of knowledge or history of working on the issue of child marriage. And as Apeksha just said, for me, it really echoed the work I had done on teenage pregnancy in the United States. I had worked on a longitudinal study, and there was the same discursive problem where cause and consequence were being confused. And of course, most centrally, how you define the quote unquote problem or practice that you're seeking to influence shapes everything that comes after it. So I knew, and we knew, that we had to get it right? We had to pick an organization, a set of activists and researchers who fundamentally had a very, very deep feminist analysis, as of course you do. And the similarities are striking, right? The confusion of cause and consequence, right? Which really, in the way that Javed was referring to, had been very instrumentalist, right? The focus of child marriage had essentially been one of how is child marriage preventing the, the economic promise of the nation. And similarly in the United States, how is teenage pregnancy, preventing the economic promise of the nation, essentially? When in fact, of course, it's patriarchy and extractive economics that are especially controlling the lives, the bodies, and the sexuality of brown and Black women in particular, which is the central aspect of what matters. And without a feminist analysis, of course, you never get to that. And we never saw that before the Nirantar work was happening. So as it relates to the discourse more broadly, which is, I think, part of what you wanted me to speak to, Apeksha? Okay. We collaborated with a political scientist several years ago to look at, the influence of this work on the global discourse. And the Nirantar landscape analysis, again, really set the platform, right? It redefined the practice of child marriage with a feminist frame. It had an intersectional root cause analysis. It really took up the issue of the control of sexuality and girls' and women's bodies very seriously. It moved and argued against both a colonial frame of it being a bad practice of the global South, and of course, child marriage has existed all over the world and still does. But not only colonial, but also sort of instrumentalist in terms of how do we squeeze the economic worth out of people without thinking about the consequences for their lives. And what we saw in this study was, in fact, that this collective work and this collective journey that we've been on, that this Nirantar report and the work that came after it that Nirantar did. So I want to acknowledge that as well. You didn't just stop with the landscape analysis, that you've been deeply engaged in doing this important work, has in fact influenced the global discourse. And I think it's pretty rare that we can say, oh, wow, look at that. Like, we actually shaped the global discourse. We can see that sexuality has become a central theme. The central aspect of the discourse is sexuality, this idea of moving from age to agency. You can see that in the global discourse, and we know that discourse matters for how resources are invested and, what
policies are put into place and who gets what support as a result. Should I stop talking? There's a lot more to say, but you have a lot of people in that room who have many things to say, so. This is absolutely perfect. Thank you so much, Jacqueline. Or I just want to say that it's 1:30 a.m. where Jacqueline is, but she has made the time to stay up for us. So huge thank you, huge thank you to that you are here. I'll do a quick summary in Hindi of what she's just said. कि बाल विवाह को देखने और बाल और जल विवाह को देखने के लिए नारीवादी एनालिसिस क्रिटिकल था, और ये उन्होंने बाल और जल विवाह पे काम करने से पहले ही पाया था, जब वो यूएस में काम कर रही थी और टीनेज प्रेगनेंसीज़ के मुद्दे को देख रही थी, जहाँ पर सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था कि कैसे लड़कियों और महिलाओं और ख़ासकर जो उस रेस या उस जाति से आती है जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड है, यूएस में वो ब्राउन और ब्लैक वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन का सवाल है, यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो जाति के संदर्भ में वही नज़र आता है कि कैसे उनके शरीर को एक तरीके से बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल तरीके से देखा जाए और उनमें से इकोनॉमिक गेन हम आर्थिक क्या फ़ायदे निकाल सकते हैं, बस उसी नज़रिए से हर मुद्दे पर काम करना, तो उसके खिलाफ में एक नारीवादी नज़रिया ज़रूरी था, ताकि वो एक एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से ना देखे महिला के शरीर को और एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखे। और जिसके अंदर उन्होंने शेयर किया कि सेक्सुअलिटी को देखना बहुत ही ज़रूरी था, और डिज़ायर्स, सेक्सुअलिटी के जो बहुत सारे आयाम हैं इंक्लूडिंग डिज़ायर्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑन यंग पीपल्स लाइव्स, कि आप तो एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो एक उन्होंने कॉलोनियल शब्द इस्तेमाल किया, जो कि कॉलोनियल के साथ साथ एक आई गेस कैपिटलिस्ट या भी इंस्ट्रूमेंटल तरीके से उसको देखते हैं, तो उन इंटरवेंशंस का युवाओं के या महिलाओं की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है उसको बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो इन सभी कारणों से ज़रूरी था कि हम उसको एक फेमिनिस्ट नज़रिए से देखें, और कि इस काम से उन्होंने कुछ साल पहले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कमीशन किया था कि ग्लोबल डिस्कोर्सेस में क्या चेंज आया है वो देखें, और उन्होंने पाया कि निरंतर स्टडी के बड़े इम्पैक्ट में नज़र आया कि कुछ शब्द जो पहले उस डिस्कोर्स में नहीं थे, जैसे सेक्सुअलिटी का मुद्दा है, तो वो अब नज़र आने लगे और उस पर बातचीत होने लगी, और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हम कुछ बदल पाए। तो वो उसके बारे में भी कह रही थी। थैंक यू सो मच जैकलिन फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। आई एम नॉट डन जस्टिस, आई नो, टू अ परफेक्ट ट्रांसलेशन, but yeah, for now, thank you so much for joining. Thank you for this amazing work that you've done. Thanks, everyone. Thank you. Apeksha, don't forget to remind people about how radical it was. Now we think it's fine to talk about sexuality and child marriage, but no one wanted us to talk about that. तो वो भी एक सच्चाई है कि आज, क्योंकि 10 साल से हम हर जगह पर जाकर यौनिकता 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 बोलते रहे, आज लगता है कि हाँ यौनिकता के बारे में बात होगी ही, लेकिन 10 साल पहले ये बिल्कुल ही आम तौर पे नहीं हो रहा था। इनफैक्ट रैडिकल था कि हम यौनिकता पर बात करने में इंसिस्ट कर रहे थे। तो इसके साथ और एक वॉइस मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो है डीना किम्बल का वॉइस। उन्होंने वीडियो भेजी है। डीना किम्बल कैंडिडा फंड, जो जावेद ने भी बताया उसके बारे में, कैंडिडा फंड की लीडर है, और उन्होंने कुछ शब्द भेजे हैं हमको इस स्टडी को लेकर। Greetings, friends in India. I am so sorry that I'm not able to be there with you for this incredible occasion. For those of you who don't know me, my name is Dina Kimball, and I had the privilege of serving as the executive director of the Candida Fund, and I also ran our Girls' Rights portfolio. About 11 years ago, when I started this work, I had so much passion for the girls and women around the world, but especially in South Asia.
What I didn't have is the wisdom and knowledge and insights into the issue of early and child marriage. I had hoped, probably very naively, as a philanthropist, that there would be a very sort of straightforward, simple solution to the challenge of early and child marriage, that perhaps something like a conditional cash transfer program scaled would do the trick. Instead, I had, thank goodness, the great privilege and fortune to run into, through AJWS, the wise, brave, thoughtful, compassionate women of Narantar who really took me on a learning journey, and I think kicked off a learning journey for yourselves around the issue of early and child marriage, how it was framed and how it was understood, and endeavored to create a very transformational change in the way that the problem of early and child marriage was understood, going from one of patriarchy, one of poverty to one of patriarchy, bringing a level of nuance and care to the discussion. And again, the problem really was redefined as a result of your incredible work. Probably even more important than changing the way the problem was understood was what came after that, which is you all and so many others in this work led the charge on thinking of a much deeper, broader, systemic set of possible solutions that really looked at girl and girl power across the spectrum, that addressed issues of autonomy, addressed issues of aspiration, and addressed issues of access to transformational girl-serving resources. I never thought in a million years I would learn as much as I have over the last 11 years. I'm so proud to have been a small part of the work that you all collectively have done. I find great courage in the women of India and your social movements, and it's been truly an honor for me to get to know you all and to work with you in one small way. I wish you all the very best. Thank you so much. उनके मेन पॉइंट्स का अनुवाद करते हुए कि उन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो वो चाह रही थी कि एक बहुत सरल तरीका होगा इस मुद्दे पर काम करने का, लेकिन उन्होंने पाया कि नहीं, और वो बहुत खुश है कि उनको ये जानकारी मिली और वो सीख पाई कि बहुत जटिल है मुद्दा, लेकिन उसके साथ साथ उस पर काम करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। और वो बहुत खुश है कि इस पूरे जर्नी में वो इतना सीख पाई और अलग अलग तरीके देख पाई जिसका वो एक हिस्सा भी रह सकी, और कि वो बहुत ही इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के वुमेंस मूवमेंट से, जो कि कॉन्स्टेंटली इन मुद्दों पर काम कर रहा है। ओके, जैकलिन हैज ऑलराइट। ओके, तो एज वी सेड कि हम देखना चाह रहे थे कि ये आइडियाज़ गए कहाँ, तो जैकलिन और जावेद और डीना ने तो कुछ शेयर किया है कि उनके नज़रिए में कहाँ कहाँ गए, और हमने कुछ और भी लोगों से बात की है, बहुत लोगों से बात करना बाकी भी है, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स हमें लगा कि एट दिस मोमेंट शेयर करना चाहिए आपके साथ, वो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, फटाफट से शेयर कर दूँगी। ओके, तो हमने बहुत बात की कि पहले जो विकास का डिस्कोर्स था बाल विवाह को देखने का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो थोड़ा याद करते हैं कि वो तब की बातचीत क्या हो रही थी। और तब की बातचीत ये थी कि मुद्दा यही था कि 18 से पहले शादी हो रही है, उद्देश्य ये था कि ये जो प्रथा है बाल विवाह की उसको तुरंत ही ख़त्म किया जाए, और चाइल्ड मैरिज फ्री जोन्स, चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत स्थापित किए जाए। अप्रोच ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वाला जो हमने ऑलरेडी बात की है, महिलाओं को एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से देखने वाला, बहुत ज़्यादातर कैरेट एंड स्टिक
अप्रोच कहेंगे या बिहेवियर चेंज पर कि हाँ अगर लोगों ने शादियाँ लेट करवाई तो बस वही हमारे लिए काफ़ी है, हमारे दिमाग में हमारे मन में लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति के एटीट्यूड्स चेंज हुए हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रख रहे थे। और कैरेट एंड स्टिक जो हमने बताया कि या तो आप एक कैश ट्रांसफ़र का एक कैरेट दिखाए कि जिसके तरफ लोग काम कर सके, या फिर आप लॉ का डंडा दिखाए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ये सारी कार्यवाही हो सकती है। और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि यही तरीके से प्रॉब्लम को देखा जा रहा था, तो स्ट्रैटेजीज़ भी यही थी कि अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही थी, लड़कियों को स्कूल में रखने का एक बहुत बड़ा इम्पेटस था, लेकिन उस स्कूल में क्या क्या किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, क्या सीख रही है लड़कियां, वो उस पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। और रोल मॉडल्स की कैसे बहुत सारी लड़कियों को एक ओहदे पे लगाया जा रहा था कि देखिए इन्होंने अपनी शादियां रुकवाई है, ये कितनी एंड इट वाज जस्ट लाइक दिस, एंड इट वाज रियली मतलब वो डिस्कोर्स उन लड़कियों पर भी कितना बुरा था, बिकॉज वो भी खुद अपनी डिज़ायर्स बिल्कुल भी आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी कि हम भी पार्टनरशिप ढूंढ रहे। फिर उनको अपना भी एक नैरेटिव बना के रखना पड़ रहा था कि देखो मैं तो पढ़ाई चूज़ कर रही हूँ, मैं तो अपना करियर चूज़ कर रही हूँ, मैं एक एम्पावर्ड लड़की हूँ, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है दुनिया में एम्पावर्ड लड़की का। कई बार हम बस कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहे होते हैं एम्पावरमेंट के लिए। तो उस वक्त ये डिस्कोर्स था, और जैसे मैंने बताया वो डिस्कोर्स के साथ के इश्यूज़ ये थे कि एक तो वो बाल विवाह को एक बड़े स्ट्रोक में एक होमोजेनस तरीके से देख रहा था कि हर बाल विवाह एक ही तरीके का होता है, जब वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं था। युवाओं के एस्पिरेशंस के लिए कोई जगह नहीं थी उस बातचीत में, और वो बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग और क्रिमिनलाइजिंग डिस्कोर्स था, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के पेरेंट्स को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि वो कितने बुरे हैं कि वो लड़की की शादी करवा दे रहे हैं, और बहुत ही मतलब उनको एक बहुत गंदी नज़र से, क्रिमिनल नज़र से देखा जा रहा था। और साथ साथ में जो लड़कियां थी उनको डीह्यूमनाइज इसलिए कि उनकी एजेंसी का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। चाइल्ड सेंट्रिक डिस्कोर्स था, क्योंकि उसमें अगर आप उस युवा को बच्चा समझते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कुछ मान्यता नहीं रहती। हम क्योंकि इट्स अ डीपर डिस्कोर्स कि हम बच्चों को क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं, बट क्योंकि वो एक चाइल्ड सेंट्रिक डिस्कोर्स था तो उसमें हर युवा लड़की लड़कों को बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हम सब ने कहा कि वो सिम्टम और ना कि रूट कॉज। तो उस वक्त हमने एक एस्पिरेशनल थियोरी ऑफ चेंज बनाई थी कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या 10 साल में क्या बदलाव चाहते हैं या लाइफ में क्या बदलाव चाहते हैं, जिसमें हमको ये था कि हम ये कहना चाहते हैं कि बाल विवाह से शादी के एग्जिस्टिंग जो मुद्दे हैं, जो बहुत सारे हैं, वो और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि जल्द मैरिज, अर्ली मैरिज से ही ये बढ़ते हैं, शादी के खुद के बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा कि अगर हम युवाओं को एम्पावर कर सके कि अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सके इंक्लूडिंग मैरिज। तीसरा कि उसमें अप्रोच हो सशक्तिकरण का, युवाओं को केंद्रित रखते हुए, लोकल रियलिटीज़ को समझते हुए, जिसमें जाति की एक समझ हो, धर्म की एक समझ हो, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरा ढांचा बना रहे उसकी एक समझ हो। और फोकस्ड ऑन ग्रुप्स एंड कलेक्टिव्स, क्योंकि हमको ये पूरी तरीके से पता था कि एक इंडिविजुअल रोल मॉडल को एम्पावर करके कुछ नहीं बदलता। जब एक सामूहिक एफर्ट होता है तभी हम होप कर सकते हैं कि कुछ बदलेगा। तो इसके साथ साथ ये अप्रोच अगर हो तो स्ट्रैटेजीज़ ये थी कि हम विकल्प बनाना चाहते थे लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, कि इसके अगर हम कह रहे हैं कि आप शादियों में मत जाइए या आप ये मत कीजिए, तो आपके पास और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आपको जो शादी से मिलने वाला था वो आपको और कहाँ से मिलेगा? उसके विकल्प तैयार करना बहुत ज़रूरी था। और फाइनली कि अगर हम थीम्स और मुद्दों पे देख रहे थे कि पिछले वाले थियोरी ऑफ चेंज में सिर्फ ये था कि आप लॉ पे काम कर रहे हो,
आप एजुकेशन पे कि लड़कियों को स्कूल में रखो और आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमें समझ आया कि हर एक चीज़ पे काम करना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग लाइवलीहुड, इंक्लूडिंग सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, आर्ट, बहुत सारे और विकल्प है और मुद्दे हैं जिस पर काम किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स बहुत बदला है ओवर द इयर्स और हमने ऑलरेडी बहुत सारी बात की है। एक बड़ा बदलाव ये है कि चाइल्ड से अर्ली तक ये बात गई है, और आज सुबह जब भारती जी आप बता रहे थे तो ऑलरेडी आपने मेरा ये पॉइंट बहुत खूबसूरती से बोल दिया कि ये एक जो उस वक्त चाइल्ड राइट्स और फेमिनिस्ट ग्रुप्स के बीच में टकराव वाली स्थिति थी, आज वो थोड़ी ईज़ हुई है और हम एक दूसरे को और सुन पा रहे हैं, और ये भी जगह बनी है कि हम अर्ली मैरिज को और समझ सकें। और साथ साथ कि एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन एक कैटेगरी ऑफ पीपल बने हैं जिनकी नीड्स, डिज़ायर्स को समझने की ज़रूरत है और जिनकी वल्नरेबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, ना ही उनको सिर्फ एक चाइल्ड के ब्लैंकेट में रखना। दूसरा कि एज एट मैरिज से फोकस बदला है, हाउ दे आर नेगोशिएटिंग एंड रिकग्निशन ऑफ कि ओके वाइल एज एट मैरिज इज़ नॉट द पॉइंट, एज की एक सत्ता है, उसका रिकग्निशन आया है। दूसरा कि सिम्टोमेटिक से रूट कॉज की तरफ अप्रोच गया है। हम देख पाए हैं कि कैसे पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें लगी हुई है इस पूरे, आप सिर्फ बाल विवाह को बाकी के संदर्भ से बाहर निकाल कर नहीं देख सकते। और इससे जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से काम करने वाली संस्थाओं के लिए बाल विवाह एक मुद्दा बन पाया है। तो अगर आप लेबर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप इसको अलग तरीके से देख पा रहे, अगर आप जाति पे काम कर रहे तो भी आप इसको एक अलग तरीके से देख पा रहे। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है और लोगों का जुड़ाव भी बढ़ा है, और इसके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। और सेक्सुअलिटी, यौनिकता फाइनली सबके लिए एक मुद्दा बना और उस पर बात करना शुरू हुआ। यंग लोगों की यौनिकता को रिकग्निशन मिलने लगी, और ये अभी भी हम कहेंगे कि पूरी तरीके से काम नहीं हुआ, बहुत काम बाकी है। तो अभी भी हम जानते हैं कि आसान नहीं है यंग लोगों की यौनिकता पे बात करना, ना ही फंडर के लेवल पर या इंटरनेशनल डिस्कोर्स के लेवल पर, और ना ही फील्ड के लेवल पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर जाकर वो बात करना। लेकिन हमारे आसपास हमारे रूम में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कर भी पाए हैं, और उनसे भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो एक आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है वो ये है कि लड़कियों के ग्रुप्स बनने लगे हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल रोल मॉडल्स, और वो ग्रुप्स पोलिटिसाइज होने लगे हैं। उनमें एक राजनीतिक समझ बढ़ाने का एक बातचीत चल रहा है, और वो ग्रुप्स को सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल तरीके से नहीं, लेकिन एक राजनीतिक ग्रुप की तरह देखा जा रहा है। जैसे एक टाइम में महिला आंदोलन में महिलाओं के ग्रुप्स को देखा जा रहा था, उसी तरीके से लड़कियों के ग्रुप्स को देखा जा रहा है, और उसमें शादी की संस्था को भी शादी की संस्था को भी पॉलिटिकली देखा जा रहा है। मेरे पास बहुत कम टाइम है तो मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई थिंक अभी के लिए मेरा प्रेजेंटेशन कम करते, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बेहतर ये चीज़ बोल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं रमा से कहना चाहती हूँ कि रमा, आप बताएं, आपने मतलब निरंतर ने तो स्टडी कर ली, लेकिन आपने उस स्टडी के सीड्स को पूरे देश भर में बिखेरा और बहुत सारे स्टडी के आइडियाज़ को ट्रांसलेट किया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इंटरवेंशन एंड डिस्कोर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप अपने रिफ्लेक्शन शेयर करें कि व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू टू टेक सम ऑफ द की इश्यूज टू ऑल द वर्क दैट यू डू।
एक बहुत मतलब AJWS का जो ग्रांट मेकिंग का काम शुरू हुआ, हम तो उसे जल्द और बाल विवाह के मूल कारणों पर काम करने वाला पोर्टफोलियो ही कहते हैं, उसके लिए बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत फाउंडेशनल रहा है निरंतर का लैंडस्केप एनालिसिस की फाइंडिंग्स, और मेरे को लगता है AJWS का काम करने का तरीका, आई थिंक ये दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से मिल कर के बने। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, बहुत से मुद्दों पे कई बार हमने बातचीत करी आज सवेरे से, तो उसके कोने किनारे के एक जो हमारी ग्रांट मेकिंग स्ट्रैटेजी में उभर कर आया कि जब हम मूल कारणों की दृष्टि से देखते हैं तो जल्द और बाल विवाह सबका मुद्दा बन जाता है। तो उसके चलते एक्चुअली ये पार्टनर पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स बन पाया। उसमें वुमेंस राइट्स पे काम करने वाली संस्थाएं शामिल हो पाई, चाइल्ड राइट्स पे काम करने वाली संस्थाएं, यूथ के साथ जो बातचीत कर रही थी, सेक्स वर्कर राइट्स, लेबर राइट्स कलेक्टिव्स, और उस डाइवर्सिटी के साथ हर व्यक्ति जो अधिकार को, जो पितृसत्ता से को चुनौती देने के लिए एक तरह की तैयारी या एक मानस अपने काम में देखते थे, वो सभी बहुत रेलिवेंट पार्टनर्स इस पोर्टफोलियो के बन पाए। आई थिंक वो एक पहली शुरुआत और जिसको कह सकते हैं विस्तार रहा इस ग्रांट मेकिंग स्ट्रैटेजी में हमारे लिए। जो मतलब इसका मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमारे साथ 10 साल को ट्रैवल करे 3 श्रमिक अधिकार संगठनों ने इस साल एक जमावड़ा किया 18 और श्रमिक अधिकार संगठनों को इकट्ठा करने का, और वहाँ पर ये बात करने का अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर कि श्रमिक अधिकार संघर्षों में जेंडर का प्रश्न क्यों क्रिटिकल है। तो जब हम उस मीटिंग का टाइटल फाइनलाइज कर रहे थे तो बहुत सारे जो ग्रासरूट कार्यकर्ता इन संस्थाओं में, उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ जेंडर नहीं, हमें यौनिक अधिकार भी, यौनिक अधिकारों और जेंडर के प्रश्न की प्रासंगिकता श्रमिक अधिकारों में कितनी है, इसको हमें बैनर पे लेकर आना पड़ेगा। तो आई थिंक उस तरह का एक पॉसिबिलिटी जो है इसने स्पर ऑफ किया। जो दूसरी बात है वो ये कि भाई नारीवादी नज़रिए से ये विश्लेषण इतना पावरफुल इमर्ज करके तो आया, पर इसे ज़मीन पे कैसे उतारें। तो ज़मीन पे उतारने के लिए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वाज कि जो खंगालने की यात्रा आप लोगों ने शेयर करी, उसके लिए इतने मतलब इतने शानदार तरीके से पार्टनर्स ने खुद की तैयारी ऑफ़र करी। कितने ही साथी इस कमरे में बैठे हुए हैं। तो प्रणीता हमेशा कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ द साइट ऑफ चेंज, माने अगर हमें इस डिस्कोर्स को अपनाना है, और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत शिद्दत के साथ, बहुत खुलेपन के साथ और बहुत मशक्क़त के साथ ग्रासरूट कार्यकर्ताओं ने और पूरी संस्थाओं ने ख़ास तौर पे यौनिकता के मुद्दे को अपनाने को लेकर के एक तैयारी दी, और उस तैयारी में बहुत कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए जो पेचीदगियाँ हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट की जो यौनिकता और पितृसत्तात्मक, मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे इंदिरा हैं, यहाँ पे विकल्प के साथी हैं, शाहीन के साथी, सभी संस्थाओं में और वहाँ काम कर रहे ग्रासरूट कार्यकर्ताओं ने अपने आप को ऑफ़र किया कि एक्चुअली ये इंटरप्रेट कैसे होता है और अगर इस पे काम करना होगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो अब ये था कि अब नारीवादी नज़रिए से काम करना है तो लड़कियों के जमावड़े कैसे हों, है ना। तो जैसे तुमने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम जो निकल कर आया वो ये है कि लड़कियों के भी सजग सामूहिकरण होना पड़ेगा और उसमें पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल बहुत सेंट्रल होना पड़ेगा। तो ये पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल को सेंट्रल करते हुए जो ऑलरेडी नारीवादी समूह महिलाओं के साथ काम कर रहे थे वो कैसे लड़कियों के साथ के काम के अभ्यास में गुथा जा सकता है, उसको हमने देखा और सभी पार्टनर्स ने किया उसको, और उसको हम साक्षी रहे हैं। और उसमें यौनिकता के प्रश्न को काफ़ी खोल बिखेर के देखना पड़ा कि एक्चुअली SRH पे बातचीत तो चल रही थी, तो SRH को SRH4 पे कैसे लेके जाएंगे और यौनिकता एक भरपूर मतलब एक पूरे अधिकार की तरह से कैसे इमर्ज करेगी, ये एक कंटिन्यूइंग काम है जो मेरे को लगता है कि इंस्पायर्ड बाय द लैंडस्केप एनालिसिस है। और बहुत खुशी की बात है, मैंने लिखा भी है इस पोस्टिट पे कि मुझे लगता है कि मर्जी, मनपसंदगी, चाहत ये बहुत सेंट्रल शब्द की तरह इमर्ज करे हैं और युवाओं के संदर्भ में, युवाओं और यहाँ मैं युवा व्यक्तियों के एक पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ जिसमें लड़कियाँ बहुत सेंट्रल रहीं, लेकिन क्वेयर पहचानों के यूथ, लड़के, इन सब की मर्जी और मनपसंद की बातचीत जो है वो इस पोर्टफोलियो में इमर्ज कर पाई। एक
छोटी सी बात और जो मेरे को लगता है कि बहुत क्रिटिकल रही वो था द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मेरे को लगता है जो इस रिसर्च ने ताकत दी AJWS के ग्रांट मेकिंग पोर्टफोलियो को, मंजिमा ने एक पूरा रिसर्च पोर्टफोलियो एंकर करा और उस 10 साल की यात्रा में हम बहुत सारे रिसर्च करने वाली संस्थाओं और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा लेड रिसर्च में जा पाए, जिसमें कि एक्चुअली जल्द और बाल विवाह के बहुत सारे पहलुओं पर बहुत ही नए प्रश्नों के साथ एक इंक्वायरी हो पाई और लड़कियों की लिव्ड रियलिटीज़ को भी एंगेज करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई। तो मेरे को लगता है कि ये यात्रा रही। थैंक यू सो मच रमा, बहुत खूबसूरती से यू हैव मैनेज टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, सो थैंक यू। आपने बहुत सारे पॉइंट्स छेड़े हैं और उन्हीं पॉइंट्स को पिकअप करने के लिए अब मैं दिव्या से इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि दिव्या ने बहुत सारी हैट्स पहनकर यहाँ पर पहुँची है और इन सभी लोकेशन से वो अपना, मैं आपसे कहूँगी कि आप शेयर करें कि कैसे इस पोर्टफोलियो के खोलने से या बहुत सारी नए नए जुड़ाव बनाने से क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आया। थैंक यू अपेक्षा। सो जब रमा अपनी सॉर्ट ऑफ जर्नी पे निकली थी जहाँ स्टडी के बारे में बात कर रही थी, उस समय मैं प्रभा में काम कर रही थी और रमा ने स्टडी के बारे में और हमारा AJWS के साथ ग्रांट था जो कि यूथ लीडरशिप के नज़रिए से चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अर्ली फर्स्ट मैरिज को हम कैसे देख सकते हैं, उसका एक छोटा कोलिशन 6 पार्टनर्स का था। और मुझे याद है कि हमारी मीटिंग में रमा आई थी और जैसे कि आपने बोला, जब इन मुद्दों, क्योंकि तब तक जो वो पार्टनर्स थे वो ज़्यादातर विमेंस राइट्स या चाइल्ड राइट्स से परे रह के यूथ सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्पेस में अपनी एक पहचान बना रहे थे और काफ़ी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत एस्टैब्लिश नहीं थी, बहुत यंग नहीं थी। और डेफिनेटली एक इतनी सरलता से जो एनालिसिस, जो मोती जो निकले थे, जो सुबह में अर्चना बोल रही थी, वो मोती सच में लोगों को बहुत कनेक्ट कर सके, सारे लोग उस स्पेस में जो थे। और ज़रूरी नहीं था कि हम ये कॉजेज़ हैं तो हम इन्हीं पे ऐसे ऐसे काम करेंगे, बात वो नहीं थी। बात थी कि उस मुद्दे को खोलना, उसको समझ पाना कि इसकी बारीकियाँ, इसकी गहराइयाँ क्या हैं, और फिर ठीक है हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि हमारा मकसद है कि यूथ लीडरशिप, ठीक है हम उस तरीके से जाएंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे बना सकता हूँ, कैसे बना सकती हूँ। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो उस मीटिंग में हुई वो मुझे एक्चुअली अभी तक याद है, पता नहीं कितने 8-9 साल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने जब गर्ल्स नॉट ब्राइड्स में काम करना शुरू किया, हमने अपने इंडक्शन पैक में स्टडी को डाला था कि आपको अगर आप बोलते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, तो हमारे जितने भी कलीग्स थे जो कि यूके में बेस्ड थे, अफ्रीका में बेस्ड थे, लैटिन अमेरिका में बेस्ड थे, हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड रिपोर्ट थी कि आप पहले इसको पढ़ो और फिर हम बात करते हैं कि इस रीजन में या इस देश में किस तरीके की कम्प्लेक्सिटी है इस मुद्दे को लेकर। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी निकली कि मैरिज से हट के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एक रिश्ते को देखना, क्योंकि हमारे बहुत से कलीग्स जो लैटिन अमेरिका में काम करते थे वहाँ मैरिज इतनी नहीं होती जितने के इनफॉर्मल यूनियंस होते हैं। और लेकिन क्योंकि ये बैकग्राउंड के जो रूट कॉजेज़ थे उससे हमारा जो एक जुड़ाव बन सका कि कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी, वो चाहे वो शादी, मतलब वो फॉर्मल शादी के रिश्ते में हो या यूनियन के रिश्ते में हो, उसका जो रूट कॉज है वो इसी से स्टेम कर रहा है। तो फिर इसके ऊपर डिस्कोर्स और बातचीत कैसे चलाएं। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स में ग्रांट्स और प्रोग्राम्स नहीं होते थे। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स का मुद्दा था कि कैसे आप डिस्कोर्स को आगे ले सकें, और इस क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा जो हमारे कोलिशन के मेंबर्स थे वहाँ पर इसके ऊपर बहुत बातचीत की। डेफिनेटली जो सारी बातें हुई हैं यौनिकता के ऊपर, जैसे कि आज सुबह बात हुई कि अब काफ़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस है, लेकिन मुझे याद है कि जब हमने पहले ये बात शुरू की थी तो कमरे में थोड़ी सी साइलेंस होती थी कि चलो अच्छा हाँ, कंट्रोल ओवर गर्ल्स सेक्सुअलिटी या यौनिकता के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो सुन लेते थे लोग, लेकिन इतना खुलते नहीं थे। लेकिन वो धीरे धीरे वो चेंज दिखाई दिया। और जब हमने यूथ वर्कर्स के साथ काम किया, डेफिनेटली अगेन क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स नहीं थे तो लड़कियों के साथ डायरेक्ट काम नहीं था, लेकिन हमने काफ़ी सारे जो हमारी साथी संस्थाओं के जो यूथ वर्कर्स जो ज़मीनी तौर पे काम कर रहे थे उनके साथ जब बात की तो पाया कि वो खुद भी इन रिश्तों में थे, उनकी जल्दी शादी हो गई थी,
कुछ के रिश्ते एम्पावरिंग इज़ नॉट, बट कुछ के रिश्ते उनको जॉय दे रहे थे, कुछ के रिश्ते उनको खुशी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर बातचीत करना कि शादी के मायने क्या हैं, सबके साथ बात करना, रोल मॉडल के तौर पे नहीं, लेकिन ये समझना कि शादी को निभाना या शादी से निकल जाना या शादी में रहना, उस पूरे फैसले को निभाने में उनकी क्या जर्नीज़ रहीं। और जब वो ज़मीन पर दूसरे यंग लोगों के साथ काम करते हैं तो उनकी क्या तकलीफ़ें आती हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया कि हम समझते हैं कि सेक्सुअलिटी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करना, लेकिन हमारे पास वो टूल्स ही नहीं है कि हम कैसे बात करें गांव में। और इसको लेकर फिर हमने भी अपनी सोच उस तरीके से बढ़ाई और कुछ संस्थाओं, साथी संस्थाओं के साथ मिलके उसके ऊपर बातचीत की कि हम कैसे कर सकते हैं। योगेश यहाँ हैं, उन्होंने हमारे यूथ कंसल्टेशंस में हमारे साथ बहुत सारा जुड़ के काम किया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आंसर्स जो भी हों और जो हमारे कोलिशन के भी सदस्य थे वो अपने अपने तरीके से इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे आने में और वो एक साझी समझ बनाने में, साथ मिलके कोलिशन में काम कैसे करना है, उस नज़रिए से अगर मैं देखूं तो इस रिपोर्ट ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। थैंक यू सो मच दिव्या। ओके, एक तो मैं पहले से बता देना चाह रही हूँ कि बहुत कम समय है। पूर्णिमा, मैं आपके पास नहीं आऊँगी क्योंकि हमने निरंतर में भी बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी हम नहीं सुन सकते उसके बारे में। बट मैं ज़रूर पुष्पा दी से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आपने कहा कि ज़मीनी स्तर पर टूल्स क्या होंगे, उस पर पुष्पा दी और हमने मिलके बहुत ही एक मज़ेदार काम किया था, और पुष्पा दी के बहुत अच्छे अनुभव है उसको शेयर करने के लिए, जो वनांगना और चित्रकूट में बांदा और चित्रकूट में वनांगना ने काम किया है गुफ्तगू मंच के साथ। जैसे मैंने परिचय में बताया था कि वनांगना में भी यंग युवतियों का एक मंच है, उसको हम मंच बोलते हैं, जो उसका नाम है गुफ्तगू मंच। गुफ्तगू मंच के साथ वनांगना 2004 में शुरुआत की थी और तब से वो काम कर रही है। उस मंच में हम अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किए, जैसे तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर, फोटोग्राफी, इस तरह की चीज़ें सिखाने के साथ साथ हमारी जो एक लंबी यात्रा रही है, जो चर्चा रही है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, यौनिकता का मुद्दा है, कानूनी रास्ते हैं, उन पे कैसे हम लोग बातचीत करके और वो जो युवतियाँ हैं वो कैसे अपनी खुद की ज़िंदगी में रास्ते निकाल पाए और कुछ रास्ते तय कर पाए। तो उस पे एक बहुत बड़ा और लंबा डिस्कशन रहा है, चर्चा रही है। इसी के साथ जो निरंतर के साथ हमारा काम हुआ, एक्शन रिसर्च का काम किया था, तो उसके बाद जो एक नई शुरुआत हुई थी गुफ्तगू मंच में कि जो लड़कियों के अंदर बहुत समय से लंबे समय से चीज़ें एकदम स्थिर होके रह गई थी, जो बाहर निकल करके ही नहीं आ रही थी, वो एक्शन के जरिए उन्होंने अपनी अंदर की बातों को बाहर निकाला। जैसे अगर सफ़र की बात हम करें तो जब तक अंदर हमारे कुछ होता है वो बाहर नहीं निकलता, तो एक नया रास्ता खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो सबसे बड़ी एक चीज़ हुई थी कि लोगों ने वो एक्शन के जरिए उन्होंने जो भी उनके अंदर परिवार में, समाज में जो लड़कियां देख रही थी, वो एक्शन के माध्यम से बाहर निकाला। और निकलने के बाद आज की तारीख में अगर हम बात करें कि तब से लेके आज तक जो बदलाव ज़मीन पे देखने को मिल रहे हैं, उसमें यंग किशोरियों ने खुद अपने अंदर के मुद्दों को समझाया। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि किशोरियों ने मतलब एक नाटक, बहुत छोटा सा नाटक था वो, उन्होंने किया था कि किस तरह घर में ही उनके परिवार में या उनके आसपास जो लड़कों के रोल होते हैं, भाइयों के रोल होते हैं, एक दोहरा चेहरा, मतलब एक मर्द के दो चेहरे कैसे सामने आते, वो उन्होंने नाटक किया था, जो उन्हें अपने मन से ही बनाना था। कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें विषय दिया गया हो कि आपको इसमें काम करना है। तो उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक भाई बनके और अपनी बहन पे पाबंदियां लगाता है, बाहर नहीं जाना, ज़माना ख़राब है, वो जो एक चीज़ है, और बाहर जा कर के वो खुद और जो लड़कियां उनके साथ किस तरह छेड़खानी और इस तरह की चीज़ें करता है।
तो दो तरह से एक चेहरे के साथ कैसे दो रूप उसके होते, ये लड़कियों ने खुद किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, अगर मैं बात करूं तो जो एकदम सामने देखने को मिल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से वो तब क्या था और अब क्या हो गया, बदल गया है, लेकिन हाँ उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। आज की तारीख में युवतियाँ खुद निर्णय ले रही हैं और निर्णय लेकर के अपनी फैमिली को समझाने की, अपने परिवार को खुद समझाने की कोशिश कर रही हैं कि शादी मतलब ठीक है, वो ये नहीं कहती मुझे शादी नहीं करना, शादी करना है, लेकिन शादी कब करना है, इस पे एक बातचीत वो फैमिली के अंदर और अपने आसपास, उनके आसपास जो फैमिली है वहाँ पर भी जा कर के बातचीत कर रही हैं कि अभी मेरी शिक्षा ज़रूरी है, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं शादी करूँगी। तो इस पे एक बातचीत करके और रास्ता निकालना। इसके बाद शादी पे भी जैसे हम बात कर रहे थे जाति धर्म और इसको लेकर के यौनिकता को लेकर के भी बहुत किशोरियां हैं जो सामने आई हैं। उन्होंने अपनी फैमिली से या उनके इर्द गिर्द जो लड़कियां परेशान थी, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमारी 2500 किशोरियां जुड़ी हैं, लेकिन जुड़ती जा रही हैं गुफ्तगू मंच से, क्योंकि उन्हें वो स्पेस मिल रहा है, वो चीज़ें मिल रही हैं। और अगर वनांगना की बात करें तो पहले तो वो खुद रास्ता निकालती हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो संस्था के पास भी आती हैं, संस्था उनके साथ होती है और मिल करके हम उस पर काम करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो जाति धर्म को चैलेंज किए हैं, मतलब अलग जाति में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी किया है, फैमिली को मनाया है, और बहुत बार अगर फैमिली नहीं मानी है तो उन्होंने अपना डिसीजन लेकर के कदम भी उठाया है। वो गई हैं जहाँ जिसको वो पसंद करती थी, वो गई हैं और जा कर के अपने हिसाब से अपनी फैमिली बनाया, अपना परिवार बनाया है। अलग अलग तरह से शादियां की है, जो एक सामाजिक ढांचा वो फेरे और वो ना करके अपने तरीके से शादियां की है। और शादियों के अतिरिक्त मतलब शादियां सब, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि सारी शादियाँ सक्सेस हुई हैं, बहुत शादियाँ सक्सेस भी हुई हैं, बहुत शादियाँ टूटी भी हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि युवतियों का अपना डिसीजन और डिसीजन लेकर के एक चर्चा चलाना, मतलब अपने ही घर में, अपने और परिवार में और फैमिली में जो अलग अलग जगह थी और अपने मोहल्ले में, वो चर्चा चला करके और डिसीजन लेकर के उस पर काम करना। थैंक यू सो मच पुष्पा दी। ओके, तो इसके साथ साथ ही मैं वर्षा को इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि हाँ वाइल लड़कियाँ थी जो अपने निर्णय ले रही थी और लड़कियों के सवाल आ रहे थे, साथ साथ में नए मुद्दे भी नज़र आने लगे और नए मुद्दों पर संस्थाएं काम करने लगी, जैसे रमा ने भी कहा। और नज़रिया का काम जो कि क्वियर इंडिविजुअल्स के साथ था, और खासकर जो नेटल फैमिली अपने खुद के जन्मजात घरों में जो हिंसा हो रही थी उन पर जो उन्होंने काम किया, और फोर्स्ड मैरिजेस पर, उस पर थोड़ा बताएं। हम क्वेयर नज़रिया में हम क्वेयर वुमन और ट्रांस पर्सन्स के साथ काम करते हैं। तो हमने जो अर्ली मैरिजेस में देखा है जो क्वेयर वुमन और ट्रांस पर्सन्स के साथ हुई हैं, ज़्यादातर फीमेल असाइंडेड बर्थ जो लोग हैं उनके साथ जो हुई हैं, हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्ती शादी हो गई है, मारपीट के शादी हुई है, या फिर शादी नहीं करनी थी तब भी ऐसा प्रेशर बनाया गया कि शादी करनी ही पड़ेगी। पर कई बार ऐसा हुआ कि चांस ही नहीं मिला कि एक्सप्लोर की जाए अपनी सेक्सुअलिटी, है ना। जब वो एज आई कि 12-13 साल की, जब अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल रहा था, उसी दौरान में शादी हो गई। पता ही नहीं चला कि हाँ जो सेम जेंडर के तरफ जो आकर्षण है वो सही है। अगर किसी को लगा भी कि हाँ मेरा आकर्षण जो है अपने दोस्त जो सेम जेंडर का है उसकी तरफ आकर्षण हो रहा है, तो ये फीलिंग्स को खुद ही दबाया गया कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम आसपास देख ही नहीं रहे कि ये सही होता है। एक आदमी और औरत का ही रिलेशनशिप है जो सही है, और एक सेम जेंडर की तरफ आकर्षण सही नहीं होता। इस तरीके के हमने केसेस देखे कि कुछ जबरन कुछ नहीं हुआ, फोर्स नहीं था,
क्योंकि होनी थी शादी इसलिए हो गई, है ना। बाकी ऐसी अभी हमने एक 2023 में एक जन सुनवाई की थी, क्लोज डोर पब्लिक हियरिंग, जो 31 क्वेयर एंड ट्रांस पर्सन्स के साथ थी। उनकी टेस्टिमनीज ली गई, है ना, कि उनके साथ जो नेटल फैमिली है, जो जन्म परिवार भी कह सकते हैं, और जो अडॉप्शन से परिवार होता है वो भी हमारा नेटल फैमिली ही होता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही नेटल फैमिली होगी। तो उसमें हमने देखा कि कई ऐसे ट्रांसमैन हैं जिनकी शादी 13 या 14 साल में हो गई, और बाद में जब उन्हें अपना जेंडर और सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन समझ आया, तब तक उनके बच्चे भी हो चुके थे ना। बाद में फिर वो जो उनके किसी और साथी से रिलेशनशिप हुआ, तब समझ आया कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, और ये जो वायलेंस का स्थिति वो बढ़ती गई, वायलेंस बढ़ता गया इस तरीके से। तो इस तरीके के हमने केसेस देखे। और हाँ, तो ये है कि हाँ, तो मतलब हमेशा हमने ये देखा कि मार पीट के ही शादी नहीं हुई है, ऐसे भी शादियां हो रही हैं, क्योंकि चांस नहीं मिल रहा, स्कूल्स में सिखाया नहीं जा रहा जेंडर के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में। जो आप फिल्म्स देखते हो उसमें भी नहीं ये दिखाया जा रहा कि ये सही है। इस तरीके के हमने केसेस देखे हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वर्षा। और साथ साथ सरोजनी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने रिफ्लेक्शन शेयर करें कि पब्लिक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपने इन मुद्दों को कैसे समझा। थैंक यू अपेक्षा। मैं कुछ बातें जोड़ना चाह रही हूँ, फिर मैं अच्छा कैन ऐड इफ़ आई लीव आउट मैनी थिंग्स, बिकॉज द वर्क जो जैसे हम समझने का कोशिश कर रहे थे काफ़ी सालों से, सिर्फ 10 साल से नहीं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, महिला स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड फॉर अस व्हाट, हमारे लिए काफ़ी अहमियत था कि पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ समझना बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य की राजनीति बहुत ज़रूरी है बिफोर वी एंगेज with other institutions as well, but we cannot leave out totally, state को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह से फैमिली को हम लेके आ रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन वगैरह, तो हमें ये लगा था कि वो एक लिंकेज जो है अर्ली मैरिज और स्वास्थ्य के बीच में, दैट वाज एक्नॉलेज्ड। ऐसा नहीं कि वो कभी दर्शाया नहीं है, बहुत दर्शाया था अलग अलग जगहों में, बट it didn't go beyond maternal health. वो एक सीमा में ही, वो मातृ स्वास्थ्य के नज़रिया में ही, परिप्रेक्षा में ही काफ़ी देखा है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ इसमें से एक्सक्लूड भी हो चुका है, लाइक सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हम कहते हैं, स्वास्थ्य निर्धारक जो भी है। और सिर्फ मैटरनल हेल्थ ही नहीं है, अबॉर्शन पे भी कभी बात नहीं किया, मिसकैरेज पे भी बात नहीं किया, स्टिल बर्थ पे भी काम नहीं किया जुड़ के, और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा नहीं था, ताकि अक्सर हम मानसिक स्वास्थ्य को अलग रख के पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट देयर इज़ एन इंटरलिंक इन दैट। सो वी वर ट्राइंग टू मेक श्योर दोज इंटरकनेक्शंस एंड ऑल्सो मूव बियॉन्ड मैटरनल हेल्थ। बट क्योंकि काफ़ी सारे जो इंटरवेंशंस है, जो पॉलिसीज़ योजना से, स्टेट से आ रहे हैं, they are all outside the health. To address early marriage, they were not directly related to health and early marriage. So that was a limitation, first thing. So I was looking at, because I was on the mission steering group of National Health Mission. जब उसने एक मुद्दा उसमें आया है, ऐसा नहीं है कि नेशनल हेल्थ मिशन ने नहीं देखा है, नज़रअंदाज किया, मगर वो लिया है कि delaying at marriage as a strategy towards addressing country's population growth. So main thrust था कि population control. I'm sure Mary is here and most of us worked on this, how it is interlinked with the family planning. You talk about contraception, गर्भ निरोधक तरीके पे बात करो, या आप स्टेरिलाइजेशन पे बात करो, नसबंदी पे, मगर ये population control या fertility control एक खास उद्देश्य था जब वो मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए था। एक उदाहरण जब जावेद और जैकलिन बता रहे थे,
वो कैश ट्रांसफर्स का। मैं कंडीशनलिटीज़ पे बात करना चाह रही हूँ। हमारा हम सबको पता है कि जननी सुरक्षा योजना है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मैंडेटरी है। जननी सुरक्षा योजना में ये था कि जो लड़की वुमेन इज़ अबाउट 19 with having not more than 2 children is not eligible to go for institutional delivery। अगर किसी को 2 बच्चे होते हैं और उसका उम्र 19 साल से ज़्यादा है, वो JSY में नहीं जा सकते। वन लेवल आपने मैंडेटरी कर लिया है and at other level you are denying, so it is also a matter of not just the conditionality here, it's also coming under the reproductive justice and also under the human rights framework. I think it is very, very important to bring, talk about early marriage from various domains. That was something which we felt again reinforcing fertility control. तो ये हमारे लिए early marriage, age plus health में main thing is this. So this was also very complex, I was just thinking earlier discussions which we had शुरुआत में जब ये डिस्कोर्स शुरू हुआ था, as public health, if I'm wearing only the medicalized biomedical way of looking at public health, अगर उसमें देखते हैं तो लगता है कि yes, if a girl is very young, हमने देखा था बड़वानी में जब maternal deaths हुआ था आदिवासी का, या छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में स्टेरिलाइजेशंस पे काफ़ी लड़कियों का, मतलब उनका एज इज़ बिटवीन 17 to 24. 15 women died in a sterilization camp and 23 women died in Barwani under maternal health and sterilization. These two are the state targeted. तो उसमें जब देख रहे थे काफ़ी बात आ रही थी कि age is important factor. So if you are young, if you get married at a young age, and the issue again going back to the maternity, again how marriage becomes very fundamental. How do you delay the marriage so that she will have the reproductive capacity to give birth to a healthy child? Because most of the women, whether Badwani ho ya Bilaspur ho, they are all anemic. In fact, one of the women who died, her HB level was 0.3. It's a 3, sorry, not 0.3, 3. It's pathetic. So in that context, how do we problematize this entire thing? At one level we say healthy. Healthy doesn't mean that you need to become a healthy mother, that is a problem I see in this entire context. It's not just the marriage alone. Even you marry at 14 or 13 or 18 or 19, these issues will remain. If you are anemic, if you don't have livelihoods, all the determinants which we spoke, Pushpa bhi bata rahi thi. Agar if you don't provide those opportunities and then see it in isolation, it's a very problem. Yeah. आई नो कि हम सबको बहुत भूख लगी है, तो मैं इसको रैप अप ज़रूर करूँगी, लेकिन जस्ट वन लास्ट थिंग आई थिंक कि ये पूरी चर्चा में जो बहुत क्लियरली हम सुन रहे हैं वो ये है कि मुद्दे बहुत ही जटिल है। आप जितना खरोचो उतने और मुद्दे निकल कर आते हैं। तो इन जटिल मुद्दों पर काम करने के लिए हमको सशक्त कौन करता है और हमको अशक्त कौन करता है? व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर डिसएम्पावर्ड? अशक्त कौन करता है? एंड कई बार दैट्स द रोल दैट फंडर्स प्ले, एंड ऑफ कोर्स मेनी ऑफ अस हैव बीन सो प्रिविलेज्ड टू हैव AJWS बिहाइंड आवर बैक्स, जो हमको इनकरेज करते रहा है कि और खुल के देखो और व्यापक तरीके से देखो। लेकिन मैं बस लास्ट योगेश जी को इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि उनका एज अ ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है अलग अलग फंडर्स के साथ एंगेज करने का, और कि जब फंडर्स ऑफ कोर्स व्यापक तरीके से देखते हैं तो क्या सहूलियत होती है, लेकिन जब वो नहीं देखते तो उसके साथ कैसे डील किया है। बहुत कठिन जिम्मेदारी दी और इस रूम में बहुत सारे साथी हैं, तो ऐसा भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल ये जो यात्रा है बड़ी सुहानी सी और बड़ी अलग, और मैं बोलूँगा कि उसमें डूब के गुजर जाने वाली रही। मैं अपनी एक कहानी से शुरू करता हूँ। मैं बहुत साल पहले जब मैंने समझा कि इस मुद्दों पे काम करना चाहिए, तो मेरी दादी ने मुझसे पूछा क्या करता है तू? तो मैंने कहा कि दादी हम लड़कियों महिलाओं पर उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा उनका बालवा रुक जाएगा और
फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगी ज़िंदगी में। उसने बोला तेरे बाप को मैंने 13 साल में पैदा किया, अब तू इतना बड़ा हो गया, बता क्या हुआ। तो मेरे को लगा कि ये तो कहानी बड़ी अजीब है। हम जाके लोगों को बता रहे हैं कि आप कमज़ोर हो, आप ऐसा करो, आप स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मेरी दादी मेरे सामने खड़ी है, बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मुझे किसी और जगह से शुरू करना चाहिए। तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल अलग छवि लेके आया और तब से मैंने बात करना बहुत अलग तरीके से शुरू किया। और वो ही वक्त था जब मेरे दिमाग में आया कि उम्र कोई चीज़ नहीं होती है और उम्र कोई मैजिक वर्ड नहीं है। उम्र से एजेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए। एक ये जो फ्रेज़ है ये तो बाद में पता चला जब आप जैसे दोस्तों साथियों के साथ ज़्यादा काम किया, लेकिन ये तब थोड़ा समझ में आ रहा था कि हाँ शायद ऐसा कुछ है। तो ये चलते चले जा रहे थे। हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि जब काम करना शुरू किया, बाकी सारी बातें इन सब चीज़ों में आ गई। माहौल में क्या बदलाव आया है वो हम देखते हैं। डोनर के पूरे समझ के अंदर जो बदलाव आया, उसके अंदर भी मुझे लगा कि मेरी यात्रा के दौरान, मैं लगभग 20 साल से लगातार विकल्प शब्द इतनी देर से इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा मज़ा आता है मुझे जब सुनता हूँ तो वो विकल्प जब खोज रहे होते हैं और इन साथियों के साथ जब जुड़ा हुआ था, तो हमारा राफ्ता हुआ ऐसे बहुत सारे साथियों से जिनका बहुत फोकस था। बहुत बड़ी एजेंसियाँ हैं, जब नाम नहीं ले, कि अच्छा आप 1 साल में कितनी बालवा रुकवा दोगे, सीधा ही, मतलब बात करने से पहले ही। अभी तो बात ही नहीं हो रही थी उसके पहले। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे पता चलेगा कि कितना आंकड़ा मतलब इसमें पार कर जाएंगे। सो ये आंकड़ों से ये बात हमेशा होती रहती थी। और साल भर में ही, 1 साल के अंदर भी आंकड़े रुक जाएंगे, यानी कि आप जाएंगे पुलिस की तरह से घर में जाएंगे, बालवा रोक देंगे और अब एक आंकड़ा बताएंगे। तो ये एक मुश्किल काम था, लेकिन हम बिगड़ गए हमारी आदतों के साथ, और हमारे साथ ऐसे साथी जुड़ गए जो इस पूरी स्टडी को भी आगे लेके गए, साथ में जिन्होंने हमको इस तरह के फाइनेंशियल मदद भी करी ऐसे साथियों के साथ। तो जो समझ बनी, फिर हमको भी लगा कि ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि आपके साथ कोई एक साथी जुड़ गए, वो 10 साल के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं और आप अपनी यात्राओं को आगे कर रहे हैं, लेकिन जो और भी साथी लोग हैं इस यात्रा में आ रहे हैं, जो पैसा देने और काम करने की जिम्मेदारी में, जिनको हम बोलने की वो कई तरह से आपको ताकतवर बनाते हैं, पर वही शायद कई जगह कमज़ोर बने। तो उनकी शिक्षा के लिए भी क्या करें। तो हम लोगों ने कहा इस पीछे नहीं हटना, जा जाके बात करना है और लगातार उन मंचों पर खड़े होकर इसको बोलना है कि ये आसान नहीं है। मेरे साथी उषा है, एक जगह पे बोल रही थी, उन्होंने बड़ा जोरदार एक वर्ड बोला कि बहुत सी बार ऐसे साथी आते हैं, उनको लगता है कि बालवा रोकना या लड़कियों की ज़िंदगी में बदलाव लाना जैसे मच्छर मारने जैसे, आप लाओगे एक स्प्रे करोगे और ख़त्म, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वो 3 महीने 6 महीने 1 साल में सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। साल दर साल यदि हम करते हैं उस काम को, तब शायद समझ के अंदर बदलाव आ रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि रूट कोच पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय कि उस पर। इन ये वाली चीज़ जो ये समझ है, साथी संस्थाएं जो हमको मदद करने वाली है, जो टेक्निकल सपोर्ट करने वाली है, और जो सरकार के अंदर भी बैठे हुए हैं, उन सब जगह पे ये थोड़ा सा लेक करता हुआ दिख रहा था। हाँ, 10 साल बाद थोड़ी खुशी होती है कि ये डिस्कोर्स बदला है, थोड़ी चर्चाएं उसके अंदर बदली है। कुछ साथी लोग आके अभी बोलते हैं कि अच्छा लड़कियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, वो आपके एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, अच्छा वो एजेंसी बनेगी तो क्या होगा। तो हम भी अभी एजेंसी का मतलब समझे कि अच्छा एजेंसी बोलेंगे, सिर्फ एजेंसी बोलने से काम नहीं चलता। एजेंसी बोलेंगे तो क्या होगा, क्या उसकी चॉइसेस होगी, क्या चॉइस के आधार पर वो कोई डिसीजन करेगी, क्या सिर्फ डिसीजन करके रुकेगी या उसके आधार पर उसको अप्रोच करेगी, उसको एक्सेस करेगी, उसको प्रैक्टिस कर सकेगी। इस तरह की यात्रा तक पहुंचेंगे या सिर्फ करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि फिर इसका मतलब इतना सा जर्नी नहीं है, 1 साल में ये बिल्कुल होने वाला है, शायद 10 साल में भी नहीं, उसको आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हमारे साथ हमारी यात्रा में कुछ साथी लोग आए, कुछ साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये आइडिया, तो उनके साथ हमको छोड़ के बीच में बाहर आना पड़ा। साल भर उनके साथ काम किया, फिर बोला कि ठीक है यहाँ रुक जाएंगे। कुछ साथी लोग आगे बढ़े और हमारे अंदर एक लगा कि हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया कि हम सिर्फ देने लेने का रिश्ता नहीं है, हम उनके साथ बात करके, नेगोशिएट करके, एजुकेट करने का रिश्ता भी शायद हम जैसे साथियों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये भी मेरी समझ इस पूरी यात्रा में और ज़्यादा मजबूत हुई। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे रुकता हूँ। मैंने बहुत सारा लिखा, बट ये अभी शायद मौका नहीं है। इट्स सो नाइस टू हियर योगेश जी, जो आप कह रहे थे कि हम जैसे साथियों का ये भी है कि उनको एजुकेट करें, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। आई थिंक यहीं पे हम सेशन क्लोज करेंगे। हम चाह रहे थे बहुत और लोगों से, अनघा से सुनने के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट वी हैव द टाइम।
आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस बाय सेइंग कि हमने एक बहुत लंबी जर्नी की है ऑलरेडी, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं उसके साथ साथ एक दूसरा माहौल भी बना है जहाँ पर इन चेंजेस का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के टाइम में जब लड़कियां या लड़के अंतरजातीय शादी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, अपनी चॉइसेस को असर्ट करते हैं, किसी एक सत्ता के स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं, तो उनके खिलाफ जिस तरीके की सिचुएशंस पैदा होती है वो भी बहुत ही कठोर है। बहुत सारे नए नए मुद्दे निकले हैं जिस पर हमें और डबल अप करके काम करने की भी ज़रूरत है, तो इस पर नेक्स्ट 2 सेशंस में हम बात करेंगे।